Good. So it's been started. Will you be joining from there only, or you can put the mic on unmute? Fine, no? So we won't have to switch on this projector and everything. Okay, so screen sharing has been started here, and we have got the second question. Let me just copy and paste it somewhere down the line. Okay, is that question visible to you there? You may take a snap of it if you want to. Otherwise, if you're there in a mobile phone, then it's perfectly okay. You may move ahead with now. So let's start reading the question. You, along with Mr. Harvey Specter, are the directors of Suits Limited. सूट पहनने वाले. In some business deal to be cracked, you are required to furnish WSEC of your company to some entrepreneurs. कोई तो बिजनेस डील है जिसमें आप डायरेक्टर हो, आपको जाना है और आपको आपकी कंपनी का WSEC वहां पे देना है. Weighted average cost of capital. How it will be useful, in what circumstances it will give you what kind of an interpretation. This everything will cover up in some time to come. Find the WSEC as per the book value and the market value of the company. The following details are available with you. Various sources of finance are being given to you: equity capital, 11% preference capital, retained earnings, 13.5% debentures and term loans. The next expected dividend on equity share per share is 3.60 rupee per share. The dividend per share is expected to grow at the rate of 7%. Market price per share is 40 rupee. Preference stock redeemable after 10 years is currently selling at 75 rupee per share. Debentures redeemable after 6 years are currently selling at 80 rupee per debenture. The income tax rate of the company is 40%. तो ये हार्वी स्पेक्टर भाई साहब हमारे पास आए. आप भी वहाँ के एक डायरेक्टर हो, कोई तो बिजनेस डील में जाना है, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है, उनको देना है. A weighted average cost of capital tells a lot about how efficiently the funds are being used by the company. What kind of an expenditure is incurred by the company to pay off the various sources of finance. जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनका टोटल मिला के जो कॉस्ट बनता है उसे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कहते हैं. उसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्यों वेटेड एवरेज लेना है, क्यों सिंपल एवरेज नहीं लेना है. उसके रीजंस हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन नाउ टुडे. Now, weighted average cost of capital is to be found by two ways. One is by using the book values, another one is by using the market values of each source of finance. So let's take the part number one, friend. So part number one, it will be WACC as per book value. You will prepare these 6 columns here. One will be serial number, one will be source, third one will be cost of finance, then the fourth one will be, can someone recall it? Book value. Book value, very nice. BV stands for the book value. और कोई नहीं भैया. Then we have got wheat, और बीवी को वेट पूछा मतलब गए घर से बाहर. टाटा बाय बाय सी यू आओ. And then we have got equivalent cost,
First of all, you write all the serial numbers, whatever the sources of finance given to you. In this case, 5 are given to you. I'm writing 1, 2, 3, 4, and 5. First one is equity capital, EC. Then second one is preference capital, PC. प्रियंका चोपड़ा नहीं है, ये कौन है? प्रेफरेंस कैपिटल है. Third one is retained earnings. I'm writing it as RE. Then we have got debentures. I'm writing it as debentures. And the fifth one is term loan. We are right now finding the overall source of the finance regarded as the WACC, weighted average cost of capital. Now cost of finance find करने के लिए हमें हर एक की वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी भैया. So first working note will be to find the cost of equity, denoted by KE, right? So can someone identify that what information is given to us to find the KE? I am putting that information in a bracket here. There were various methods to find the cost of equity, right? Out of that, the second method was the dividend growth yield model. And as per that, the formula was D1 divided by P0 plus G. D1 stands for the dividend per share amount. Dividend per share has been explicitly given 3.6 rupee. Just write it as it is over there. Then P0 stands for the market price of the equity share. How much? 40 rupee. Just write 40 rupee over there. Plus the growth rate is straight away given to us. 7% will also be written like 0.07. 3.6 divided by 40. What do we get? 0.09 plus 0.07, so equal to 0.16. Now 0.16 can also be stated as 16%. Clear hai? So writing 0.16 over there as the cost of finance, friend. Now PC we are going to find. Before that, I'll have to put this on charge. Give me just 30 seconds. Okay, let's move ahead. The charging has been started. PC stands for Priyanka. Preference capital. अच्छा, प्रेफरेंस कैपिटल का जो कॉस्ट है वर्किंग नोट नंबर 2, उसको फाइंड करने के लिए we had got one formula. In the last question, straight away the dividend rate of the preference capital was taken as the cost of preference shares, because no other details were given related to redemption, related to its maturity, related to whether they were issued at premium or discount. No such information was given to us in the last question. That's why we had taken the dividend rate directly as the cost of preference shares. But in this case, the information is given to us. In how many number of years the preference shares will be redeemed, what is the market price, these details are given. That's why we'll be using the formula of cost of preference shares, which we used to write in the cost of preference share questions. Let's go over there. Capi D plus MV minus SV divided by N. Remember that in the back of your mind. The whole is divided by the average of MVSV. D stands for the dividend per share.
कोई कोई पूछ रहा था कि सर फेस वैल्यू की जरूरत क्या है, तो फेस वैल्यू की इसलिए जरूरत है, डिविडेंड है ना वो फेस वैल्यू के ऊपर ही पे होता है, वैसे ही डिबेंचर को भी इंटरेस्ट हम उसके फेस वैल्यू के ऊपर ही देते हैं, इसलिए फेस वैल्यू की जरूरत है। मैं बोला मार्केट में तो ट्रेड अलग ही भाव से करना है, तो फेस वैल्यू की जरूरत ही क्या है। अच्छी बात है, नाइस क्वेश्चन। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर पेड ऑन द फेस वैल्यू, दैट्स व्हाई फेस वैल्यू इज रिक्वायर्ड। अच्छा, डिविडेंड पर शेयर विल बी हाउ मच, वील हैव टू राइट इट इन अमाउंट, राइट? 13.15%, no, 11%, sorry, on the face value of 100. Yes or no? 100 rupees is given to you at that rate, at that value, the preference share capital has been recorded. On that 11% will be 11 rupee. So I can write it like 11 rupee over there. Plus MV stands for the market value की maturity value? Maturity value. बच्चे यहाँ पे भूल करते हैं। Maturity value मतलब कि when these shares will be redeemed, at that point of time, at what value you will be maturing this? Do we have any information related to discount or premium? No. So we assume that whatever the face value is given to you, at that we'll do the redemption too. So the face value is 100. Now see, the formula of the MV was also looking like this, no? That FV plus premium और डिस्काउंट को माइनस करते तो आपको क्या मिलता है? MV मिलता है। अब ऐसा कुछ डिटेल दिया हुआ ही नहीं है, तो स्ट्रेट अवे फ्यूचर अपना जो फेस वैल्यू है वही क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी वैल्यू। तो जाते हैं भैया मैच्योरिटी वैल्यू में 100 रुपये। एसवी स्टैंड्स फॉर द सेल वैल्यू। अब सेल वैल्यू का फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही था, देखो फेस वैल्यू था, उसके अंदर अपन लेस करते थे क्या? प्रीमियम, डिस्काउंट, फिर आता था इश्यू प्राइस, फिर उसमें से लेस करते थे फ्लोटेशन कॉस्ट, तो हमें आता था सेल वैल्यू। But here again the premium, whether these are issued at premium or discount, not given to us. Details of the flotation cost, not given to us. But one thing should be taken into account, that face value should not be taken as the sale value in this case. Reason being, see right now the market price of this is how much? Preference shares. 75 rupees. Preference stocks redeemable after 10 years, currently selling at 75 rupees. Now see, no one will be giving you the money which is more than the market value, right? Right now, if you are issuing the preference shares, no, you will fetch only the market price. आपको कोई कंपनी को नए वाले शेयर्स इश्यू करने हैं, समझ लो, तो नए शेयर्स आपने बेटा इश्यू किए, तो कौन से वैल्यू से इश्यू करोगे? जो अभी मार्केट में भाव चलता है उससे करेंगे ना। कोई आप में इन्वेस्ट क्यों करेगा? आपके पास से 100 रुपए मिले, मार्केट में भाव 75 पे चल रहा है, तो बोलेगा भाई मेरे को तेरे के पास से क्यों लेना, मार्केट में जाके किसी और से 75 पे ले लो ना। तो आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो, इश्यू प्राइस हम फाइंड कर रहे हैं अभी, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज कर पाएंगे अपन? जितना अभी उसका मार्केट प्राइस चल रहा है क्या नहीं? उससे ज्यादा कोई हमें देगा भी नहीं ना बेटा। मार्केट में भाव समझ लो 50 रुपए चल रहा है और आप इश्यू कर रहे हो 100 रुपए से, तो वो तो बोलेगा आपको कि भाई मैं तो मार्केट में 50 रुपए में अवेलेबल है, तो मैं वहां से ही परचेस कर लूं ना, तुम्हारे पास 100 रुपए में क्यों आऊं मैं? तो इश्यू करोगे आप, उस समय पे आप ज्यादा से ज्यादा कौन सा वाला भाव लोगे? मार्केट प्राइस। राइट नाउ करंटली ट्रेडिंग एट, सेलिंग एट हाउ मच? 75. So that will be taken as the issue price. Clear है? Okay, so I'm writing over there sell value as 75. इश्यू प्राइस के बाद कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट 0 आएगा, तो इश्यू प्राइस हो जाएगा अपना सेल वैल्यू 75, right? To be divided by how many number of years in which this debenture is going to be redeemed? Sorry, not debenture, preference shares. 10 years. After 10 years, redeemable after 10 years. ठीक है? तो n will be 10,
divided by 100 plus 75 divided by 2. Here I am doing the star mark on MV and SV both. MV is taken as the face value, is taken as maturity value, and this sell value is taken as the market price. मार्केट में जितना पैसा चल रहा है उतना ही आप इश्यू कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे. अब तो सिर्फ सॉल्व होना ही बाकी रह गया है. एच है, अब एच क्या है? हलवा. क्या आता है बेटा? 0.1543 can also be written like 15.43%. 0.1543 को अपन वहां पे डेसिमल में ही लिखेंगे, 1543 नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 0.1543 पीसी. ठीक है, आगे बढ़े. Retained earnings. It was given in the last session as well that retained earnings cost will be taken same as the cost of equity, because ultimately the right to receive the retained earnings is belonging to the equity shareholders. कंपनी के फंड्स किसको बिलोंग करते हैं? उसके ऑनर को. तो ऑनर का ही जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी हो जाएगा. 0.16. डिबेंचर्स, अगेन द फॉर्मूला. रिडीमेबल डिबेंचर्स है तो फॉर्मूला लगे ना केडी का. चलो भैया जाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3. लेकिन ध्यान में ये रखना है कि while finding the WSEC you will always take the after tax cost of debenture. The tax benefit is available exclusively only to the interest, not to dividend. That's why when we were finding the cost of preference shares, no, we had taken the dividend before tax. D के बाद में 1 माइनस टैक्स रेट नहीं किया था, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट के समय पे 1 माइनस टैक्स रेट भी करेंगे क्योंकि उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा केडी आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट, राइमिंग भी हो गया ना, ब्रैकेट रेट देखो, प्लस एमवी माइनस एसवी divided by n. Remember that in the back of your mind. The whole is divided by the average of MVSV. I stands for the interest amount per debenture. डिबेंचर का इंटरेस्ट अमाउंट भी कौन सी वैल्यू पे मिलता है भैया? फेस वैल्यू पे मिलता है. एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए. कितने हैं? 100 के ऊपर 13.5%, मतलब कि 13.5 रुपीस. So let me write 13.5 rupees over there multiplied by 1 minus tax rate. Tax rate is how much? 40% in the last line. So it will be 0.4 plus MV. मैच्योरिटी वैल्यू में डिस्काउंट पे मैच्योर करेंगे कि प्रीमियम पे करेंगे ऐसा कोई डिटेल नहीं है. तो कौन से वाले वैल्यू पे मैच्योर करेंगे? फेस वैल्यू पे भैया. 100 रुपए का फेस वैल्यू वैसा का वैसा. Minus SV. SV stands for the sell value. Don't have any details about the flotation cost, whether issued at premium or discount, but yes, we have got the detail of market price. You cannot charge even a penny more than what is the market price right now. तो मार्केट प्राइस से ज़्यादा हम चार्ज नहीं करेंगे, अदरवाइज तो कोई हमारे ऊपर इन्वेस्ट करेगा ही नहीं. मार्केट प्राइस कितना है डिबेंचर में? डिबेंचर का भैया
70, 80 rupees. Yes, second last line. So 80 rupees will be taken as the sell value. कितने साल के बाद रिडीम करना है? 6 साल के बाद. Remember that in the back of your mind. 100 plus 80 divided by 2. अब तो HH है, क्या है? HH 13.5 multiplied by 0.6 plus 20 divided by 6 to be divided by 90. 13.5 multiplied by 0.6 क्या आता है बेटा? 8.1 plus 20 divided by 6 3.333333. इतनी बार तो सेट मैक्स में क्या नहीं आती? सूर्यवंशम डिवाइडेड बाय 90. फाइनल आंसर 0.1270. So can also be written like 12.70% if we multiply that with 100. 0.1270 will be written over there as the cost of finance for debenture. And the loan, my friend, when there is a loan, उसका कोई मार्केट प्राइस होता है क्यों? कभी देखा है लोन मार्केट में बिकता हुआ? मैंने तो 40 के लिए था ना, एक काम कर मैं तो 35 में दे देता हूँ, मार्केट प्राइस क्रैश हो गया, मेरे लोन का मार्केट भाव क्रैश हो गया, ऐसा सुना है कभी? उसका तो जो भैया वैल्यू होता है वही वैल्यू होता है. तो उसके लिए फॉर्मूला अलग था ना, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ लोन. वर्किंग नोट नंबर 4. तो ऐसा कुछ याद आ रहा है? केडी, ये केडी ही होगा. पहला वाला केडी था वो डिबेंचर के लिए था, ये वाला लोन के लिए. केडी स्टैंड्स फॉर द कॉस्ट ऑफ डेट. डेट आप लोन से भी ले सकते हो, डिबेंचर से भी ले सकते हो. तो इट वाज इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट. याद आ रहा है? ऐसा फॉर्मूला अपन ने चार्ट में भी लिखा था. तो इंटरेस्ट रेट कितना है लोन का? 15%. तो जस्ट राइट 0.15 देयर multiplied by 1 minus tax rate. Tax rate is how much? 0.6 के 4. अच्छा 0.15 multiplied by 0.006 नहीं, खाली 0.6. 15 छक्का 99, so it will be 0.09. It is also 9%. Let me write 0.09 over there in the main table. तो अब हर एक के कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मिल गए भैया. अब क्या किसकी बारी आ गई? अब बीवी की बारी. बीवी को लिखना शुरू कर देते. जितना भी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ना, उसी को ही बुक वैल्यू कहते हैं. तो जो हमारा अभी दिया हुआ वैल्यू है उसमें कोई छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है, वैसा का वैसा लिख डालो भैया. मिंडे में गलती नहीं करनी, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा? मिंडा 15 करोड़. फिर आएगा 1 करोड़. प्रियंका चोपड़ा सिर्फ 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए लेती होगी क्या मूवी के लिए? ज्यादा लेती होगी नहीं? उसकी मूवी आती भी नहीं है ना अब. हाँ 20 करोड़ रिटेन अर्निंग्स. अब तो हॉलीवुड की हो चुकी भाई, हॉलीवुड की. पता नहीं है नीक भाई साहब ने क्या खिला दिया, उसके बाद कहीं दिखती ही नहीं रही है कहीं पे. 10 करोड़. अब उसको लीड रोल मिलना भी बंद हो गया ना, ऐसे साइड में लेते थे. बाजीराव मस्तानी में भी बेचारी को साइड में ले लिया. बताओ, एक तो लीड एक्ट्रेस वो डिजर्व करती है, उसकी एक्टिंग है वो बाकी सबसे बहुत एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी. लोन 12 करोड़ 50 लाख.
It's said in India that a 50-year-old hero can romance with 30-year-old lady, but a 50-year-old lady cannot romance with 30-year-old hero. टोटल क्या आता है भैया बुक वैल्यू का? 58.5 करोड़. 58 खोखे 50 पेटी. 58 खोखे 50 पेटी विडू. Now the weight is basically nothing but how much contribution is done by each of these source of finance into total capital structure. So equity capital is contributing 15 crores out of 5850. So what is the percentage contribution done by equity? That is basically the weight of equity. So 15 divided by 58.5. What do we get? या तो फिर मिंडे में करना हो तो मिंडी करो. 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 58 करोड़ 50 पेटी. और मिंडे में नहीं करना है तो शॉर्टकट भी है हमारे पास. 15 divided by 58.5. 2564. Now 1 divided by 58.5. एक है वो करोड़ है भैया. 1 divided by 58.5. 0171. Now 20 divided by 58.5. 3419. 10 divided by 58.5. 'And last one, 12.5 divided by 58.5. 2137. अब सबका क्या करेंगे? टोटल. कैलकुलेटर में करिए टोटल क्या आता है वेट्स का सबका. यहाँ पे बच्चे करने लगे. बेटा करने की जरूरत नहीं है. एक आएगा. कितना? एक. Now equivalent cost is nothing but the multiplication of the cost of finance with weight. You multiply weight and cost of finance, you will get cost equivalent cost. So 0.16, let me use a different color so that I'll be able to identify in a red one. So 0.16 multiplied by 0.2564. 0410. 0.1543 multiplied by 0.0171. 0.0026. Very nice. 0.16 multiplied by 0.3419. 0.0546. 0.546. 7 ki 6? Okay, 7. Next one, 0.1270 multiplied by 0.1707. 0.0217. 0217. Very nice. And the last one, 0.2137 multiplied by 0.09. 0.0421. अनु 1 नो आवे ना छोकरी. इस सब का टोटल आपको मिलेगा. दैट विल बी अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस. (0.1392) can also be written like 13.92%. क्लियर है? अच्छा यहाँ पे देखो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में फर्क क्या है. मैं आपको बताऊं 10% और 20%. ये दोनों की एवरेज फाइंड करो तो क्या आता है? 0.15. ठीक है. इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.20 डिवाइडेड बाई 2. है कि नहीं?
इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2. Let me use a different color. Now this 1 divided by 2 is basically the weight. क्या है? Weight. तो आप सिंपल एवरेज लेते हो ना, उस समय पे आप हर एक को सेम वेट दे देते हो, लेकिन हमें हर एक को सेम वेट नहीं देना है. जो जितना कंट्रीब्यूट करता है उसके हिसाब से हमें वेट देना है. तो हमने बेस कौन सा लिया उस वेट को फाइंड करने के लिए? बुक वैल्यू. ठीक है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से हमें हर एक का वेट मिल गया, देखो ये वाला, और उस वेट को हमने मल्टीप्लाई किया कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के, तो हमें इक्विवेलेंट कॉस्ट मिल गया. फिर इक्विवेलेंट कॉस्ट का टोटल करेंगे ना, क्योंकि बीच में प्लस साइन भी तो है. तो यही किया हमने, और कुछ नहीं किया. 13.92. लेकिन हमारी अधूरी कहानी, क्योंकि पार्ट 1 इट वाज अबाउट द बुक वैल्यू. The similar exercise will be done by taking the market value as the base to find the weighted average cost of capital. Is it clear? So चल गुरु हो जा शुरू, वैसा का वैसा टेबल. पार्ट 2 WACC as per market value, सीरियल नंबर, उसके बाद में सोर्स के बाद में उसका कॉस्ट के बाद में बीवी की जगह पे एमवी. बीवी के साथ क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया. अब हो गया एमवी के बाद आएगा उसका वेट, और फिर आएगा हमारा इक्विवेलेंट कॉस्ट. पांचों के पांचों सोर्स ऑफ फाइनेंस भैया लिख डालो, 1 2 3 4 एंड 5. सोर्स ऑफ फाइनेंस पांचों के पांचों. पहला कौन सा था? ईसी. फिर बाद वाला प्रियंका चोपड़ा. फिर तीसरा वाला रिटेन्ड अर्निंग. चौथा था डिबेंचर्स. और पांचवा था लोन. उसके कॉस्ट को भी फिर से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, पहले ऊपर फाइंड कर चुके हैं ना बेटा, वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिर्फ मार्केट वैल्यू में चेंज आएगा और सब कुछ सेम रहेगा. तो ईसी कितना था? 0.16. पीसी कितना आ रहा था बेटा? पीसी 1542. ओके 43. अच्छा, वन मोर थिंग अगेन, द रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट कौन सा होगा? इक्विटी का. वेरी नाइस. 0.16. डिबेंचर का कॉस्ट भी फाइंड करके रखे है अपन, 1270, एंड द लास्ट वन विल बी 0.09. मार्केट वैल्यू अब लेंगे इंस्टेड ऑफ बुक वैल्यू. क्लियर है? छोटा सा फोकस आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए बेटा. अब मार्केट वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? पहले तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू चाहिए इक्विटी कैपिटल का. ठीक है, इक्विटी कैपिटल को रिकॉर्ड अपन ने कितने से किया है? 15 करोड़. एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 15 डिवाइडेड बाई 10, सो इट विल बी 1.5 करोड़, राइट? तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है ना, 40 रुपए, है क्या नहीं? तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, 40 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट वैल्यू टोटल इक्विटी का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो ऐसे नीचे लिखेंगे भैया, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. अपन फाइंड कर रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. ऐसा रहेगा तो इसका वर्किंग नोट बना लो, तो आप फिर भूलोगे नहीं. तो इट विल बी 15 करोड़ divided by first of all 10, so it will be number of equity shares. So 1.5 crores multiplied by 40 rupees, so it's basically number of shares
multiplied by market price of each share, so which is market capital we have got, market capitalization. So it will be how many crores? 60 crores. तो मार्केट वैल्यू इक्विटी में जाके लिख देंगे कितने करोड़? 60 करोड़. समझ में आया सबको? पक्का? वेरी नाइस. सेम मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे प्रेफरेंस कैपिटल का मार्केट प्राइस ढूंढने में भैया. जाओ क्वेश्चन में. प्रेफरेंस कैपिटल को रिकॉर्ड अपन ने कितने से किया है? 1 करोड़ से. उसमें एक शेयर कितने का? 100 रुपए का. 100 रुपए का रिकॉर्ड किया तब जाके 1 करोड़ रुपए बना. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख. और एक एक शेयर का हमें मार्केट वैल्यू भी मालूम है कितना है? 75. तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 75, सो इट विल बी 75 लैक्स. क्लियर है? नीचे जाते हैं 75 लिख डालते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस में. सो मार्केट वैल्यू ऑफ पीसी, प्रेफरेंस कैपिटल. प्रेफरेंस कैपिटल divided by face value of preference share, so that will be number of preference shares. है कि नहीं? तो प्रेफरेंस कैपिटल कितने का है? 1 करोड़ का. उसको डिवाइड करेंगे उसके फेस वैल्यू. कितना है फेस वैल्यू? 100. तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले? 1 लाख. नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मार्केट प्राइस से. तो हमें क्या मिल जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस. कितना है एक प्रेफरेंस शेयर का? दे आर सेलिंग एट 75, ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है? दैट बिकम्स माय मार्केट प्राइस, नो? So let's multiply that with 75. So what do we get? 75 lakhs. Clear है? आगे बढ़ते हैं. Retained earnings. Now here the focus again will have to put by you. Friends, retained earning का market value कभी भी नहीं होगा. Because when you purchase the equity shares from the market at the market price, the retained earnings is already included in that payment. The classic examples, I have been repetitively saying this, that when you had purchased in the shares of Zomato just now issued at 76 rupee, the face value of that share was just a 1 rupee. 75 rupees were paid by you as the securities premium. Securities premium forms a part of your reserves and surplus. So equity shareholders also pay you for your reserves and surpluses too. If the market price of the Zomato is right now say 120, which is much higher than the face value of 1 rupee, right? So why they are paying 119 rupee more? They also considers what reserves and surpluses are possessed by company. Hence, the market value of the equity already includes the reserves and surpluses value. That's why reserves and surpluses value will be taken as nil. Clear है? ये सिर्फ कौन से वाले में अप्लाई होगा? मार्केट वैल्यू के हिसाब से जब वेट फाइंड करेंगे तब. रिजर्व्स एंड सरप्लसेस का बुक वैल्यू है लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं है. क्लियर है? लिखेंगे भैया उधर 0 नील. डिबेंचर का फिर से अप्लाई करेंगे वही मैकेनिज्म. जाओ ऊपर क्वेश्चन में. डिबेंचर कितने से रिकॉर्ड किए भैया आपने? 10 करोड़ से. एक एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का. तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स मालूम पड़ जाएगा. नंबर ऑफ डिबेंचर्स से हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे? एक एक डिबेंचर का मार्केट प्राइस.
तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर का भाव कितना था 100, तो कितने आ गए 10 लाख आ गए. सो 10 लाख विल बी योर नंबर ऑफ डिबेंचर्स. भैया ये जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस से, तो हमें क्या मिलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स. इट विल बी 10 lakhs multiplied by 80, so it will be how much 8 crores. आठ करोड़ को मैं लिख डालूं उधर मार्केट वैल्यू में. जहां जहां मार्केट प्राइस होगा उधर ही मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन आएगा, बाकी सब जगह पे तो मार्केट वैल्यू आएगा ही नहीं. अब लोन का मार्केट वैल्यू कहीं पे देखा है, सुना है आज तक? तो लोन का तो जो बुक वैल्यू होगा वही उसका क्या होगा यार मार्केट वैल्यू. कितना है लोन का बुक वैल्यू? 12 खोखे 50 पैटी. सबका टोटल कितना आता है? This is CA IPCC 16 mark question of financial management, सेकेंड लेवल. लेकिन हम इधर 8 में ही पूछेंगे सिर्फ. साठ और 12 50 मतलब 70 to 50, 70 to 50 और 8 करोड़, तो आई गेस 81 करोड़ 50 lakhs आएगा. 81 करोड़ 25 lakhs आएगा. 81 करोड़ 25 लाख. इसको डिलीट कर देते वरना बच्चे होंगे कंफ्यूज. 81 करोड़ 25 lakhs. Now you will find the relative contribution by each of this source of finance in the total capital structure amount. 60 is what percentage of 8125? So you may just write 60 divided by 81.25. What do you get? 85. $75 lakhs divided by 81 crore 25 lakhs. You can also write it like 0.75 divided by 81.25. What do you get? रिटेंडर अर्निंग का तो कुछ आएगा ही नहीं. 8 divided by 81.25. 0.8 नहीं 8 करोड़ है. 8 divided by 81.25. Okay. 12.5 divided by 81.25. सबका टोटल क्या आएगा 1. अब तो एच एच है भैया. एच एच कॉस्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? वेट के साथ. तो इक्विवेलेंट कॉस्ट मिलता जाएगा बेड़ू. $0.1182. 0.0014. थर्ड वाले में तो नील आएगा. 0.1270 मल्टीप्लाइड बाई 0.0985. 0.1538 multiplied by 0.09. 0138. अब सबका टोटल फाइंड करेंगे. दैट विल बी माय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर द मार्केट वैल्यू.
So 14.59 percentage will be my WACC as per market value. क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखो बेटा, एक ही चीज जो आपको ध्यान में रखनी थी वो क्या था कि वेट है वो अलग होगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। रिटेन्ड अर्निंग का मार्केट वैल्यू हमेशा नील लेना है, कभी भी उसमें नहीं लेना है एक भी रुपया, बिकॉज द रिटेन्ड अर्निंग्स मार्केट वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। बट लेकिन अगर बुक वैल्यू के हिसाब से करते हैं तो फिर रिटेन्ड अर्निंग का भी बुक वैल्यू आएगा। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस फाइंड करने के लिए आपको हर एक की अलग अलग जो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस की थी वो यूज करनी पड़ेगी। That becomes my overall cost of finance. Now I'll be comparing that my overall cost of finance with the other industry players. If my cost of finance will be too high in comparison to others, it's a matter of self introspection for me. मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है बाकी सब लोगों के कंपैरिजन में। अगर मेरा कॉस्ट बाकी सबसे कम आता है तो हमारे लिए गर्व की बात है, शर्म की बात नहीं है। तो यही इंटरप्रिटेशन होता है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आप फाइंड करते हो, इससे मालूम पड़ता है कि कंपनी जितना भी फाइनेंस लिया है अभी तक लॉन्ग टर्म के लिए, उस सभी के ऊपर वो कितना कॉस्ट इनकर करती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो जो कंपनीज बहुत इनकर करती है वो भी गलत है, जो कंपनी बहुत कम करती है ना वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपसे मांग क्यों नहीं रहे पैसा? तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का कम आता है बहुत, तो फिर इक्विटी में भी ग्रोथ रेट में आपको देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे उसमें। कंपनी अगर कम पे करती है उसका सीधा इंटरप्रिटेशन ये भी निकल सकता है कि कंपनी को अर्निंग मिलता भी कम होगा शायद। So their earning ratios might not be looking very good if their cost of finance is very less. Well, that's a matter of interpretation, analysis that is purely ad hoc in nature, circumstance to circumstance, company to company, situation to situation, it will differ. I'm not commenting on that right now. लेकिन weighted average cost of capital clear है, ठीक है? Thank you so much. So let's put your enrollment number as a mark of your attendance. That's it from my side. If you have any question or query left, you may definitely communicate that to me.